Hello friends, myself Dr. Kirti Shriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the SYBSc Chemistry Paper 3. We are in semester 4 now and we have already started the unit 3, that is statistical treatment of analytical data. So friends, so far now we have discussed about the various analytical treatments that are given to the data. We have discussed about the mean, mode, median, range, standard deviation, variance about the data. Then in our last lecture we discussed about the method of rejection of particular value in our set of data. So for that we apply 2.5D and 4D test. Similarly we can also apply the Q test. So friends, now we have also discussed about the confidence limit and confidence interval of a particular set of data. Okay, so for that we can use various techniques like population mean, okay, student T and using range. So now in today's lecture we will discuss about the test of significance. Okay, so significance is very important when you carry out any test or when you give representation of your data. So for that various methods are applied. So very first method for test of significance is null hypothesis. Okay, so what is null hypothesis? Many times what happens when we apply particular test and then we come to a particular result. Okay, we carry out various experiments, we put on our data and then we come to certain conclusions. Okay, so this helps to explain correlation between some variables. Whenever you do the experiment, it is always on the basis of some parameters as well as some variables. Okay, so when you want to correlate various variables, then you have to make certain kind of relation in them. So this generalization is termed as hypothesis. Okay, so what is this hypothesis? A null hypothesis is a type of hypothesis used in statistics that proposes there is no difference between certain characteristic of a population. मतलब अगर हम लोग कोई assumption करते हैं तो वो assumption कैसा होता है कि जो assumption हमने किया है उसमें और हमारा जो डेटा आने वाला है, जो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन हम लोग लिखने वाले, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना. इफ इट इज़ काइंड ऑफ दैट then it is called as null hypothesis. So when hypothesis is supported by sufficient experimental data concerning all variable, it is accepted and it becomes a theory. Like suppose we say that sun is hot, right, and we all know that sun is hot, so it is a theory now. Or we can say the earth is round. Initially the person who made this assumption, it was not proved. That time it was assumption, it was hypothesis. But slowly after so many experiments and so many conclusions, so many proofs, it is now proved that earth is round and therefore now it has become a theory. So hypothesis मतलब किसी चीज़ को assume करना है ना. और theory कब बन जाती है? अगर वो assumption पूरी तरह से, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और उसको प्रॉपर प्रूफ देते हो और वो अजम्पशन आपका प्रूव हो जाता है, देन इट बिकम्स अ थ्योरी. जैसे हम लोग मैथ्स में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं ना, तो इनिशियली दे आर अजम्पशंस बट आफ्टर वेरियस प्रूफ्स दे आर कंक्लूडेड दैट दे आर ट्रू, देन दे बिकम्स थ्योरी. सो सिमिलरली जब आप नल हाइपोथेसिस रखते हो तब आप उसको कैसे रखते हो कि जो मैंने अजम्पशन रखा है दैट विल बी गोइंग टू लाइक दिस. ओके, सो इफ the hypothesis is supported by sufficient experiment considering all variable, then it is accepted and then this hypothesis becomes a theory. लेकिन मानो अगर आपको sufficient evidence नहीं मिले, sufficient proofs नहीं मिले, then that particular hypothesis is rejected. Okay, so generally experimental observations often agree well with the
एक्सेप्टेड थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, लेकिन कभी कभी वो अपने थियोरी के साथ, मतलब अपने अजम्पशन के साथ नहीं भी जाते, है ना. सो एनालिस्ट मस्ट डिसाइड वेदर द देयर कैन बी सम डिस्क्रिपेंसीज. बराबर है, कुछ एरर्स आ सकती है. सो दिस एरर्स आर रैंडम एरर्स विच आर एसोसिएटेड विथ मेजरमेंट्स, or these discrepancies are due to the methodical error. Okay, so there are several statistical tests which are used to check the significance of result and they are called as test of significance. मतलब सिग्निफिकेंस का टेस्ट हमें कब करना पड़ता है? अगर आप नल हाइपोथेसिस या आपके किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करना चाहते हो, है ना. तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर आपके एक्सपेरिमेंट का जो आपका हाइपोथेसिस है, जो आपका अजम्पशन है, वो अगर सफिशिएंट एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव हो जाता है देन इट बिकम्स अ थियोरी. लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं होता है देन इट कैन बी ऑल्सो रिजेक्टेड, है ना. सो देर आर सेवरल स्टैटिस्टिकल टेस्ट बाय विच वी कैन चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट्स एंड देन दे आर कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. मतलब जो अजम्पशन आपने किया है वो सही है कि नहीं, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी टेस्ट अप्लाई करनी पड़ती है. सो उसमें से एक है नल हाइपोथेसिस. सो नल हाइपोथेसिस अज्यूम्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रू मीन एंड कैलकुलेटेड मीन. मतलब क्या कि मेरा जो ट्रू मीन है, ट्रू मीन मतलब हमारा जो पूरे पॉपुलेशन का जो मीन है वो, और जो मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो, इट इज़ वन एंड द सेम. there is no difference. So this type of null hypothesis can be made, है ना. तो ये एक एग्जाम्पल है कि मीन मतलब क्या, मेरा अजम्पशन जो है वही मेरा रिजल्ट आने वाला है. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो मैंने अजम्पशन किया है ना. जैसे मैं बोलती हूँ कि माई कॉलेज एंड माई होम इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये शुरुआत का मेरा अजम्पशन है. सो सपोज दिस इज़ माई ट्रू मीन, और बाद में मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी एंड फाइनली आई विल गेट सम कंक्लूजन आउट ऑफ दैट. सो दैट विल बी माई कैलकुलेटेड मीन, है ना. मतलब एक आपका अजम्पशन होता है और एक आपका फाइंडिंग होता है. अगर वो दोनों सेम है देन वी कैन से दैट व्हाट वाज माय नल हाइपोथेसिस. इट अज्यूम्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अजम्पशन एंड द calculated or observed one. So true mean and calculated mean. So when we test that, हम लोग जब उसका पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं एंड व्हेन इट इज़ टेस्टेड एक्चुअली एक्स बार नेवर कम्स एज म्यू. हमारा जो अजम्पशन है वो पूरी तरीके से कैलकुलेटेड के साथ मैच नहीं होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो. So after making this assumption that is x bar is equal to mu, various tests are carried out. Okay? और वो टेस्ट के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. फिर हम लोग देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट कैन बी डिसाइडेड लेटर. ओके, सो एक्चुअली द नल हाइपोथेसिस क्या करता है, इट कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी, ओके, वेदर द ऑब्जर्व डिफरेंस विल अपीयर एज अ रैंडम एरर एंड वेदर इट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट, है ना. तो इसीलिए हम लोग शुरू से क्या पकड़ के चलते हैं कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मीन एंड पॉपुलेशन मीन, है ना. सो वी कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू एक्स बार. sometime it comes true और sometime it cannot. Okay, most of the time दोनों सेम नहीं आते because assumptions are never made in a correct manner, है ना. So therefore sometime they are rejected. So in order to decide this one has to carry out certain test. हम लोगों को अपना डेटा के लिए कुछ टेस्ट अप्लाइड करने पड़ते हैं and these tests are actually called as test of significance, है ना. जो हमने अजम्पशन किया है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग जो टेस्ट अप्लाई करते हैं उससे कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर जो नल हाइपोथेसिस है जो हमने अजम्पशन किया है वो रखना है या रिजेक्ट करना है, वेदर इज़ टू बी एक्सेप्टेड और इट शुड बी रिजेक्टेड.
ओके। सो उसके लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑफ एक्स बार विथ म्यू। हमारा जो कैलकुलेटेड मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। देन द सेकंड वन इज कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑफ x1 बार एंड x2 बार ऑब्टेन बाय टू डिफरेंट मेथड। मान लो अगर हम लोग कोई अजम्पशन कर रहे हैं, है ना, जैसे हम लोग लैब का एग्जांपल लेंगे कि कोई सैंपल दिया हुआ है और उसमें क्या है, देयर इज़ निकेल इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन यूज़ टू डिफरेंट मेथड टू एस्टिमेट दैट निकेल सैंपल। हम लोग एक वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करेंगे और एक ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन करेंगे, है ना, और उन दोनों में हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा, है ना, मीन मिलेगा। तो एक मेथड का मीन है x1 बार और दूसरी मेथड से जो मीन मिल रहा है उसका नाम है x2 बार, राइट। मतलब x बार 1 एंड x बार 2, दो डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किए हुए दो डिफरेंट मीन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो मीन है उनको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में पहली टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, वी कंपेयर द एक्स बार विथ म्यू। जो हमारी एक ही नॉर्मल मेथड है उसमें जो मीन आने वाला है, कैलकुलेटेड मीन एक्स बार, दैट इज़ कंपेयर्ड विद द पॉपुलेशन मीन, दैट इज़ म्यू। या फिर दूसरी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेम जो एक्सपेरिमेंट है अलग अलग दो मेथड से करेंगे और उन दोनों के मेथड का जो मीन आने वाला है उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। सो दिस वे यू कैन कैरी आउट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड देयर इज़ वन मोर मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड एज एफ टेस्ट। जैसे नल हाइपोथेसिस है ना, तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, there are two methods, x bar is compared with mu and x1 bar is compared with x2 bar। दो डिफरेंट मेथड के मीन कंपेयर करने का। उसी तरह से दूसरी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एफ टेस्ट। ओके, सो जनरली व्हाट हैपन्स व्हेन सैंपल इज गिवन टू अस, we have to carry out certain experiment for that, okay, and it is analyzed by suppose again two different method, then we can apply the F test। तो अगर हम लोगों ने एक ही सैंपल दो अलग अलग मेथड से क्या किया, एनालाइज किया, देन हम लोगों को दो मेथड के लिए दो अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिलेंगे, है ना। पहली मेथड के लिए एक मीन, दूसरी मेथड के लिए दूसरा मीन, फिर पहली मेथड के लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरी मेथड के लिए दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस वे suppose you compare the standard deviations of two different method, then we can apply the F test। तो ये F test क्या होता है, F is equal to S1 square divided by S2 square। तो यहाँ पे S1 and S2 क्या है, they are the standard deviation of two different method। हम लोग जिस दो मेथड से, मानो एक ग्रेविमेट्रिक किया और एक वॉल्यूमेट्रिक किया, दो अलग मेथड हो गए। वी आर एनालाइजिंग सेम सैंपल, वो जो सैंपल है एक हमने एनालाइज किया वॉल्यूमेट्रिक के साथ और दूसरा वही सैंपल एनालाइज किया ग्रेविमेट्रिक मेथड के साथ। तो दोनों के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, उन दोनों का स्क्वायर करके उसका रेशो लेना है ना। देन व्हाट हैपन, दिस एफ, देयर विल बी वन वैल्यू फॉर दिस एफ रेशो, है ना, एंड दिस रेशो इज नाउ कंपेयर्ड विद द टैबुलेटेड एफ वैल्यू। जैसे हम लोगों ने क्यू टेस्ट या फिर बाकी टेस्ट में देखा कि फॉर एवरी रेशो देयर इज़ वन टेबल गिवन, सिमिलरली हियर ऑल्सो फॉर एफ वैल्यूज़ अ टेबल इज़ गिवन और हम लोग ये जो एफ वैल्यू है वो उस टैबुलेटेड एफ वैल्यू के साथ कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू हमारी टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आती है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन द टैबुलेटेड वैल्यू, देन the methods are different from each other and therefore they cannot be substituted by each other। लेकिन अगर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू टैबुलेटेड एफ वैल्यू से छोटी आती है, then there is no statistical difference between the two values। फिर हम लोग वो दोनों वैल्यू भी रख सकते हैं।
सो दिस वे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए दूसरी टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफ टेस्ट. ओके, so you just remember these two names, very important for test of significance. One is null hypothesis and the second one is F test. Okay, फिर आगे के पार्ट में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना. तो अगर आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है इन अ ग्राफिकल मैनर, जनरली वी वांट टू ऑब्टेन अ बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन, है ना. तो डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पैरामीटर एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उसमें से जो पॉइंट प्लॉटेड है उसमें से जाने वाली एक सूटेबल और वी कैन से बेस्ट फिटिंग लाइन हम लोग ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. सो हियर टू ऑब्टेन द बेस्ट फिटिंग लाइन हम लोग तीन मेथड यूज कर सकते हैं. द वन इज कॉल्ड एज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. ओके, सो द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मेथड में क्या करना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर लिंक टू द independent variable, and this is also known as regression analysis. किसी पर्टिकुलर डेटा में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसे रिएक्ट करते या कैसे उसके साथ वेरी करते, वो हम लोग इस मेथड में देख सकते हैं. देन द सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर. ओके, सो मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर में आप लोगों को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ता है अगेन y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x, है ना. एंड द थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ एवरेजेस. सो दिस थ्री टाइप ऑफ मेथड्स आर गिवन फॉर फाइंडिंग आउट द बेस्ट फिटिंग लाइन. Okay, so all you have to just remember these three names which are very important, that is correlation and regression, method of least square and method of averages. Okay, so this is all about our third unit, that is statistical treatment of analytical data. Here we finishes our particular syllabus of paper 3. In the next lecture we will meet with some another topic. Till that, you take care and stay safe. Thank you.